Hello students, I am your maths faculty Nihal Shah. Today we start the chapter number 5 and the theoretical chapters of our standard 9. The chapter name is Introduction to a Euclid's Geometry. Geo, that means a simple earth, and metry matlab measures, right? So in ancient times, first of the Egyptian, then after Babylon, Indian, Chinese, and also the Greeks. ओके तब से ए नॉर्मली ज्योमेट्री इनडायरेक्टली यूज हो रहा है एंशियंट टाइम्स में, बट इन द सिस्टमेटिक्स रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द इजिप्शियंस, द मैथमेटिशियंस या टीचर इज यूक्लिड्स, राइट? स्टार्ट द इन दिस टाइम. The one of the best students of Euclid is Pythagoras. You know that the Pythagoras theorems. But in India, Sulsa Sutra is also the simplification of the Pythagoras approach, right? Before the born of the Pythagoras, right? So now what is the Euclid's approach to the geometry? So let's start. They are almost of the theoretical points are there. A solid is a solid is here. 1 minute. So there are solid, right? A solid is a 3-dimensional figure having the shape, size, and the positions. It can be moved one place to another. Boundaries of the solid are all called the surface, and boundaries of the surface are lines. Lines curved, yeah, straight. So for example, this is the solid, this one is a point, this one is a line, and this one is a surface. The simple boundary of the solid are called the surface. 1 2 3 4 5 6 7 6, right? 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6. Lines and in points, and lines and in points, right? So they are the basic approach in Euclid's approach of the geometry, right? So just see here. So Euclid say the geometric quantity and dimension. Solid are 3 dimensions, surface, any surface 2 dimension, line 1 dimension, and point are 0 dimensions, right? So what the Euclid say, the some definitions give the so first one is the point, students. So what is point? A point is that which has no parts is called a point. What is point? They have no parts, so that's why it is called the point. Understand? So now line. So a line is a breadthless length. Line is a breadthless length. जिसके अंदर ब्रेथ नहीं होता, ऐसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं बच्चों, राइट? क्योंकि वो 1 डायमेंशन है इसके लिए. अंडरस्टैंड? नाउ सरफेस. A surface is that which has length and breadth only, right? What is the meaning of surface? A surface is that which has length and breadth only. So you know that some kind of the formula, surface area, of normally this surface matlab area of the L into B and something, right? 2 dimensions. So that's why it is now again, so the simple end of a line. So the end of a line are points. From the posture, let me think. Now edge of the surface. So the edges of a surface are always line. Just see that, you know that the surface, yeah. So this one, and with this all are lines. All are lines. Understand? Now edges of a surface. The edges of a surface is always lines. Straight line. What is the meaning of straight line? Just like a straight, normally the straight line is a line which lies evenly with the point on itself, right? It is called the line. तो बहुत सारे पॉइंट एक जॉइंट होके एक लाइन पॉसिबल बनती है, राइट?
चलो उसके बाद देखते हैं प्लेन सरफेस बच्चों। प्लेन सरफेस, a plane surface is a surface which lie evenly with the straight lines on itself। ओके तो प्लेन बच्चों जैसे कि एक बॉर्ड होता है तो ओके वो प्लेन सरफेस है, समझ गए आप? ओके और सीधी बात है वो स्ट्रेट लाइन से है जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, राइट? ओके तो थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि यूक्लिड्स, so Euclid recorded the development in geometry in the systematically ordered under the name of elements, it divided into 13 chapters each, is called the book, it's called the book, right? तो उन्होंने जो उसके नाम से एलिमेंट है तो ऐसे 13 चैप्टर्स है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? बुक कहते हैं, बुक, right? And here so there are the 2 points we know that is one is a axioms and second is a postulate. So here first we check the axioms, right? So the axioms are the assumptions which are the obviously यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ रहे हो बच्चों? जो प्रूव है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज कॉल्ड द एक्सियम, सो दे आर नॉट प्रूव्ड। ओके तो एक्सियम्स क्या है बच्चों? लॉजिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अदर्स प्रूफ करने के लिए। ओके तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके लिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हुए सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स आर, तो यूक्लिड ने और थोड़े जो हमें एक्सियम्स दिए हैं उसको हम लोग अभी रिफर करेंगे। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। बहुत सिंपल बात है, हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इसको। सो थिंग्स विच आर इक्वल, ओके मान लो तो सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। अगर a इज इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल टू c है तो आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b, राइट? ओके समझ में आया? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर कोई इक्वल्स पार्ट के अंदर कोई सेम पार्ट्स ऐड किया जाता है तो होल आर इक्वल, तो पूरा जो होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ओके चलो आगे बढ़ते। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑलवेज इक्वल। सेम नंबर को आप एकदम सेम नंबर से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो दोनों तरफ इक्वल मिलेगा। The things which coincidence with the one another are equal to one another. Okay, coincidence आप जानते हो उसके ऊपर आ जाए, ओके तो वो क्या होता है? सेम ही होता है, इक्वल वन एनदर, राइट? So the whole is greater than the part. ओके the whole is greater than the part. कोई भी होल होता है वो अपने पार्ट से तो बड़ा ही होता है। मान लो यहाँ पे कि if a is greater than b है then there exists c, हमें ऐसा c मिलेगा जो a is equal to b plus c होगा, राइट? तो बहुत सीधी बात है यहाँ पे। ओके तो आप क्या कह सकते हो? here a is greater than b, ओके तो b is a part of a, समझ में आया? b is a part of a। चलो आगे things which are double of the same things are equal to the one another। बच्चों वन थिंग्स विच आर डबल, अगर थिंग्स जो है क्वांटिटी वो डबल हो रही है एट द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द एन अदर्स। ओके सो थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स एंड देन इक्वल टू द वन एन अदर। ओके तो नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा में इनडायरेक्टली इसको यूज करते हैं, राइट? तो ये सब क्या है? नॉर्मली इज अ वन काइंड ऑफ एक्सियम्स या एक्सियम जिसमें प्रूफ की हमें जरूरत रहती नहीं है, राइट? तो चलो यूक्लिड ने एलिमेंट्स दिए ना, राइट? तो एलिमेंट्स कितने थे? 13। हर एक को क्या कहा जाता है? बुक। क्या कहा जाता है? बुक। व्हाट इज द एक्सियम्स? एक्सियम्स क्या है बच्चों? एक्सियम्स आर द assumptions which are obviously universal truths, so they are not proved। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके तो चलो फिर यहाँ पे हमने थोड़े बहुत उसके थे तो ये याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन ही आएंगे मोस्ट ऑफ दिस। ओके या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स। ज्योमेट्रिक क्वांटिटी एंड डायमेंशन। 3 डायमेंशन को हम लोग सॉलिड कहते हैं, 2 डायमेंशन सरफेस एरिया, 1 डायमेंशन लाइन एंड नो डायमेंशन मतलब 0 डायमेंशन वो पॉइंट है। चलो क्लियर?
ओके, ये बेसिक चीज हमें नॉर्मली इनडायरेक्टली याद रखेंगे। चलो, तो ये क्या था, यूक्लिड्स अप्रोच था, राइट। तो आप जानते हो कि नॉर्मली बच्चों इजिप्ट से बेबीलोन से इंडिया के पास आया, एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर वहाँ पे, हाँ आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत उसके अंदर सोशल साइंस के अंदर। अब उसके बाद फिर वो जो नॉलेज था वो पास होके अल्टीमेटली इंडिया चाइना और फिर ग्रीक पहुंचा, राइट। बट जो हम लोग कहते हैं कि जो प्रैक्टिकली अप्रोच था वो यूक्लिड्स का रिकॉर्ड किया गया है, राइट। ओके, बट उससे पहले सुलसा सूत्र जो इंडिया में था उसके अंदर पाइथागोरस के बॉर्न के पहले से भी वो प्रूव है। ओके, तो बहुत सारी चीज जो इंडिया के अंदर रिकॉर्डेड मतलब ऐसे फॉर्म में नहीं थी इसीलिए, बट नॉर्मली उस टाइम पे यूज किया जाता था। ओके, तो जो हमारे जो सूत्र होते हैं उपनिषद उसके अंदर ये सब चीजें बताई गई है। ओके, सो दिस इज द थियोरेटिकल चैप्टर्स। ओके, 1-2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं हमें यहाँ पे, और थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है ना बच्चों उसको हमें अभी रिफर करना बाकी है, राइट। मतलब पोस्टुलेट्स है और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको थियरी पॉइंट समझ में लिखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा और याद करते रहना। ओके, समझ में आ गया? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, वी विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, also and complete this lecture, this chapter also in your exams. Okay, so please prepare, please make a notes. Okay, till then and goodbye.